studied about the national income, some basic concept of national, ठीक है? We about the national income. We studied some basic concept of national income, in which we studied about gross and net. Gross and net has related with depreciation. If it is equal to net plus depreciation, if we find net, net is equal to gross minus depreciation. Depreciation. Second concept we studied national and domestic. Domestic income, the income generated within the territory of the government. National income generated within the outside. Okay. So it has related net factor income from abroad. If we find national equal to gross, sorry, national is equal to domestic plus NFIA, then net factor income from abroad, or domestic is equal to national minus NFIA minus net factor income from abroad. National and domestic related with NFIA, net factor income from abroad. ठीक है? और net income from abroad calculate NIT, net indirect taxes. And if we find market price is equal to factor cost plus NIT, net indirect tax. If we find factor cost is equal to market price minus NIT, net indirect tax. Net indirect tax minus subsidies. ठीक है? तो this we study class, and in class we studied when I gave for you practice, so I will show you first the solution of that one, then we go to the so now first national 5,000, net indirect tax 400, 300, and net factor income from abroad, yani NFIA, net factor income from abroad minus 100. So देखो first student we find GNP MP, ठीक है? तो GNP MP is equal to given है GNP FC. Now देखो if we compare gross same, national, market price is equal to factor cost plus NIT. Market price is equal to factor cost plus NIT. ठीक है? तो NIT net indirect tax is 400. तो 5,000 plus 400, 5,400. Then we find NNP at MP. We have GNP at FC. Now we compare net or gross. Net or gross related depreciation. Net is equal to gross minus depreciation. Or national same, market price equal to factor cost plus NIT, net indirect taxes. So this is 5,000 minus depreciation 300. Depreciation is also known as consumption of fixed capital. हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग. तो डेप्रिसिएशन नेट ऑन कर आ गया.
So this is net indirect taxes. Indirect taxes 400. Last yes, ठीक है। तो ग्रॉस ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक और नेशनल टू NFIA। Now about the methods of calculating national income के राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां हैं, कैसे आता है। We calculate national income formula and we take some numerically example to. So there are three methods of calculating national income कि राष्ट्रीय आय मापने की तीन विधियां हैं। फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, हिंदी में बोलते हैं आय विधि। सेकंड वन एक्सपेंडिचर मेथड एंड हम हिंदी में कहते हैं व्यय विधि। और थर्ड वन है वैल्यू एडेड आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड, मूल्य वृद्धि विधि, आय उत्पादन विधि, या फिर इसको कह सकते हैं हम मूल्य वृद्धि विधि, उत्पादन विधि या उत्पाद विधि भी लिखा होता है, ठीक है। तो वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड वी मस्ट दैट इफ calculate the national income by any method, national income will be same। ये नहीं कि आप सोचो कि if we calculate the national income by income method separate answer, expenditure separate, value added separate, no, the national income calculated by any method answer will be same। national income तो same रहेगी, आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट नो दैट इफ यू यूज एनी मेथड national income will be same। So first we discuss about how to calculate national income by income method। ये हमारा income method, ठीक है। तो income method students you can take pen or register so that you can note down all the topics and formulas etc, so that it will be helpful in your examination to do। if there will be a theory, mostly जो है एग्जाम में हमें इसकी थ्योरी आती है, बट स्टेप्स एंड प्रिकॉशन से तो व्हाइल यू राइटिंग द स्टेप्स also numerically भी you can show so that the student can get very good marks, ठीक है। तो इनकम मेथड में फर्स्ट वी हैव कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अभी इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर हिंदी में भी बता दूंगा स्टूडेंट्स को। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें हमारे तीन पार्ट होते हैं, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सैलरी। सैलरी होता है विच इज गिवन ऑन फिक्स्ड बेसिस, कि जैसे सैलरी होती है स्टूडेंट्स एज यू नो दैट हम ऑफिस में वर्क करते हैं या जैसे, तो उसमें हमें सैलरी फिक्स मिलती है, या फैक्ट्री वगैरह में है जहाँ पे फिक्स सैलरी मिल रही है एम्प्लॉइज को कि भाई 50,000 रुपीज, ठीक है। तो सैलरी हो गया हमारा जो फिक्स बेसिस होता है, मंथली बेसिस फिक्स्ड आ रही है। वेजेस होता है जनरली डेली वेजेस, और जैसे कैजुअल लेबर्स होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में लेबर होती है वो गेट वेजेस, क्योंकि उनका परमानेंट नहीं होता, जिस दिन वर्क करेंगे दे गेट। या जैसे आपने सुना होगा कि डेली वेजेस पे भी वर्क होता है, कि सपोज कि अगर आपने जिस दिन वर्क किया आपकी उस दिन की पेमेंट बनेगी, जैसे संडे है हॉलीडे है तो देयर विल बी नो पेमेंट, तो वो वेजेस होता है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर, देखो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर है हु एम्प्लॉयड द एम्प्लॉइज, जो ऑनर है आप जनरली कह सकते हो, तो उसने जो अपने एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह में ऑनर कंट्रीब्यूट करता है, जैसे उनके पीपीएफ में है या उनका मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है,
फिजी एजुकेशन है चिल्ड्रन की उसके, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटी, तो ऑल दिस काउंट इन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इनकम गेन फ्रॉम डूइंग जॉब, कि हम किसी और की वर्क कर रहे हैं और उससे हमें इनकम मिल रही है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। द पर्सन हैज प्रॉपर्टी एंड अर्निंग इनकम फ्रॉम दैट, और वो उससे इनकम अर्न कर रहा है। जैसे फर्स्ट वन दिया रेंट इनकम। रेंट आप जानते हो, जैसे सपोज अ पर्सन हैज नंबर्स ऑफ हाउसेस एंड दैट पर्सन let out for rent purpose and other, that is his income, rent income। हमारा इंटरेस्ट जो इन्वेस्टिंग वगैरह पे जैसे बैंक वगैरह में तो वी हैव नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट होते हैं। देखो कई प्रॉफिट के पार्ट हैं जैसे हमारे, तो प्रॉफिट में फर्स्ट आता है कॉर्पोरेट और प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस corporate profit tax, the tax imposed by the company's profit is known as corporate tax, profit tax। Undistributed profit ये होता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो सेविंग करता है, it is also known as saving of distributed profit is also known as saving of private corporate sector। The student must note all the point which I discussed so that you can make their own notes, do practice and you will get a very good marks in the examination। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट कॉर्पोरेट और प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक कह सकते हैं सेविंग ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जितना भी सेविंग करता है, और प्लस डिविडेंड। या तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन होगा या पार्ट में गिवन होगा, तो सारे ऐड करके ये सारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वी गेट प्रॉफिट। एंड फोर्थ वन इज रॉयल्टी। देखो स्टूडेंट व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी इज गिवन बाय द जैसे गिवन टू द ऑन द कॉपीराइट। जैसे एज वी नो दैट जैसे बुक्स होती हैं, जैसे सपोज एक पब्लिशर है एबीसी पब्लिश, कोई बुक का नाम है मिस्टर XYZ, तो XYZ गेट द रॉयल्टी ऑफ पब्लिशर। तो जैसे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आजकल मोस्टली वी सी कि जो पुराने गाने हैं, जो ओल्ड मेलोडी सॉन्ग जो दैट वाज आल्सो रनिंग इन करंट मूवीज आल्सो, तो ऐसे नहीं कि वो अपनी मूवी में प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु कंपोज, ये रॉयल्टी गिवन होती है। और लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट वन है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो इसमें क्या है, इसमें वो पर्सन आते हैं मोस्टली जो हमारे पर्सन्स हैं दैट कम्स जो he opens his clinic and does treatment to the patients, तो his income is mixed। जैसे उसने अपना पूरा एक सेटअप बनाया, जैसे सपोज क्लिनिक सेटअप किया है तो वो उसको रेंट पे भी दे सकता है, ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट वन इज, और उसने मनी भी इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट मिल सकता है उसको, वो जॉब भी कर सकता है हॉस्पिटल में सैलरी, बट वो नहीं मिलेगा, तो उसका मिक्स्ड पार्ट है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इफ वी ऐड ऑल दिस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें तीन चीजें आएंगी, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से इनकम में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट और प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, एंड डी इज रॉयल्टी, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इफ वी ऐड ऑल दिस वी गेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हैं, एनडीपीएफसी, ठीक है। ये आ गया हमारा एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम, व्हेन इट से टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इज द एनएनपी एट एफसी। देखो स्टूडेंट, हमें वी हैव एनडीपीएफसी, वी नीड टू फाइंड आउट एनएफसी।
सी, तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, तो वी एड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी गेट नेशनल इनकम। ठीक है, अब एक बार फर्स्ट वी डू इन हिंदी, देन एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। देखो दिस इज इन द हिंदी आय विधि। तो इसमें पहला आता है कर्मचारियों पारिश्रमिक, जिसको इंग्लिश में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ए मजदूरी वेजेस कहते हैं, बी सैलरी या वेतन, डी सी सामाजिक सुरक्षा अंशदान या योगदान भी मालिकों या नियोजकों द्वारा। ठीक है, कई बार आपको क्या होता है, वो कहेगा कि आइटम इंक्लूड होता है और लिख देगा सामाजिक सुरक्षा अंशदान कर्मचारी, सोशल एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो एम्प्लॉय का नहीं आएगा, हमेशा एम्प्लॉयर का आएगा, नियोजक का, मालिक का आएगा। फिर ये आता है हमारा, इसमें देखो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें तीन चीजें आएंगी, मजदूरी यानी वेजेस, वेतन सैलरी, सी सामाजिक सुरक्षा अंशदान मालिकों या नियोजकों द्वारा, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नेक्स्ट प्रचालन अधिशेष, इसको संपत्ति से आय भी कहते हैं। तो इसमें हमारा आएगा लगान या किराया, मूवी भी है लगान, तो उसमें वही किराया वसूलते हैं, जमीन पे मिलता है लगान। तो अब और भी फॉर्म आ गया इसका कि भाई अब लोग रेंट पे अपने घर देते हैं, बिल्डिंग्स हैं पूरी, अब मॉल्स होते हैं, मॉल्स में देखो आप पूरी रेंट पे होते हैं मॉल्स, तो कितनी अर्न करते हैं, तो वो उनकी इंटरल इनकम होती है सारी, इंटरेस्ट। क्या स्क्रीन तो चली, देखो देख लिया कर कुछ बीच में एक बार ना। ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मजदूरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा अंशदान मालिकों या नियोजकों द्वारा। दूसरा पीरियड ठीक है, या किराया, बी ब्याज, लाभ के इंग्लिश में भी करे थे हमने, लाभ कर या निगम कर, जो कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, कर लगता है, उसको निगम कर या लाभ कर कहते हैं, और ये प्रत्यक्ष कर होता है। प्लस अवितरित लाभ, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे, एक नाम और भी है, निजी निगमित क्षेत्र की बचत। कई बार इसमें लिखा होता है कई जगह निजी निगमित क्षेत्र की बचत, तो स्टूडेंट यू कैन राइट इट, अवितरित लाभ को निजी निगमित क्षेत्र की बचत, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, और लाभांश डिविडेंड। देखो डिविडेंड रह गया था, डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट्स, लाभांश के लाभ का अंश, हिंदी में इंग्लिश में गए तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट इज गिवन ऑन शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड, या हिंदी में कहे तो लाभांश। और नेक्स्ट होता है रॉयल्टी, रॉयल्टी को हिंदी में भी रॉयल्टी ही, जो कॉपीराइट्स वगैरह पे दिया जाता है। और नेक्स्ट है, तो ये हमारी तीन चीजें हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसमें आएगा मजदूरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा अंशदान नियोजकों या मालिकों द्वारा, प्रचालन अधिशेष या संपत्ति से आए जिसमें लगान या किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी, और तीसरा आता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। ठीक है, तो अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो हमारे पास घरेलू आय या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-FC आ जाता है, राष्ट्रीय आय होता है NNP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय NNP-FC प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया एक्सेल, उसका न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा, क्योंकि इसके दोनों न्यूमेरिकल साथ कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रोथ डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ चेंज इन स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या इसको और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लिखा होता है कई जगह। और फिफ्थ होता है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपेंडिचर मेथड देखो स्टूडेंट्स क्या क्या आएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट और हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम फैमिली पर जो पर्सन्स हैं वो जो जितना भी करते हैं दैट इज नोन एज प्राइवेट और हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है दैट इज देन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स कंट्री में कंस्ट्रक्ट होती है जैसे फ्लाईओवर्स है, डैम्स है, वो सारी चीजें आती हैं। और चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ है एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो आप लोग नोट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। आई एक्सप्लेन वेरी इजीली एंड और वेरी not in very hurry, so that student can write in a very good manner. So private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic fixed capital formation प्लस चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इन सबको ऐड करने। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स याद रखना, यू ऑलवेज मस्ट कीप इन योर माइंड व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल कि फिक्स्ड वर्ड, देखो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, इफ fixed word is given then we add change in stock, you can note it down it. If fixed word is given you can add change in stock in some time. It is given gross domestic capital formation, fixed word is not given, that means it is the sum of gross domestic fixed capital formation plus change in stock. तो simply अगर हम देखें तो अगर fixed word is given है then we add change in stock, fixed word is not given, suppose here given only gross domestic capital formation और आपको fixed change in stock भी दिया numerical में, तो we should not add change in stock, तब हम change in stock add नहीं करेंगे if fixed word is not given in gross domestic capital formation given है only, तो change in stock नहीं आएगा, डायरेक्ट आप फोर्थ आइटम लोगे नेट एक्सपोर्ट। और अगर फिक्स वर्ड गिवन है तो आप चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे। बस इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है इट इज द सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आप सिंपली लर्न कर सकते हो, फिक्स वर्ड इज गिवन, चेंज इन स्टॉक ऐड, फिक्स वर्ड इज नॉट गिवन, चेंज इन स्टॉक वुड नॉट ऐड। तो इफ ऑल 5 आइटम दिस, ठीक है, तो वी गेट जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी, वही तो माइनस करेंगे, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल टू प्लस एनएफआई, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में करा था। इसके ये वाला जीडीपी के बाद एनएनपीएफसी फाइंड करना, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल is equal to domestic plus NFIA, market price is equal to factor cost plus NIT. तो this is the now we discuss in हिंदी। तो व्यय विधि में देखो क्या क्या आता है स्टूडेंट, व्यय विधि इसको उपभोग तथा निवेश विधि भी कहते हैं, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर मेथड, हिंदी में उपभोग तथा निवेश विधि। तो इसमें फर्स्ट आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी या पारिवारिक अंतिम उपभोग व्यय भी लिखा हो सकता है, सरकारी अंतिम भोग व्यय, सकल घरेलू अचल या स्थायी पूंजी निर्माण, और स्टॉक अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, और फिफ्थ है शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात। तो ये 5 आइटम है। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग, सकल घरेलू माइनस आरंभिक स्टॉक, और प्लस शुद्ध निर्यात, निर्यात तो इनको ऐड तो प्राइस हिंदी में बार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, वो ये हमने लास्ट में था कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए कराए थे स्टूडेंट्स, ताकि अब ये जो चीज हम देखें तो आपको राष्ट्रीय आय होता है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक,
तो जैसे अब हमें निकालना है नेट, तो इन्होंने पहले क्या करा, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की नाम है, मूल्यह्रास, घिसावट, स्थायी या अचल पूंजी का उपभोग, स्थायी या अचल पूंजी का उपभोग, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिर उसके बाद इसमें ऐड करते हैं NFIA, विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, और लेस करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको हम न्यूमेरिकली करते हैं, आप, मैं इंग्लिश में है, हिंदी में बोल दूंगा, आप लोग नोट कर लेना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो स्टूडेंट्स, अगर पेपर में आपको स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस आते हैं तो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकली आल्सो, कि हम कैलकुलेट इस तरीके से, वी कैन, पहले पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर दो एंड यू कैन गिव एन एग्जांपल बाय इमेजिनरी, टेकिंग योर ओन इमेजिनरी, सो इट इज वेरी इजी। पर लगा आपने इतना टफ वो न्यूमेरिकल कर गए जो आप पेपर में ही कंफ्यूज हो गए कि हाउ वी कैन सॉल्व इट, so you can take very easy example so that you can do very easily. Okay students, so calculate national income by income and expenditure method from the following data. item है rupees crores, जैसे profit यानी लाभ 200 करोड़ है, 200 करोड़, हिंदी वाले लिखे profit लाभ 200 करोड़, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय 440, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 250, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक 350, 350, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिक्स वर्ड नहीं है, हिंदी वालों को भी बता देता हूँ ये वाला पॉइंट। हाँ, आप लोग सुनो एक बार स्टूडेंट्स, कि अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में होता है फिक्स्ड वर्ड नॉट गिवन, तो हिंदी में होता है अचल या नॉट गिवन, वी वुड नॉट ऐड चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन। अगर अचल या स्थायी वर्ड नहीं दिया हुआ तो हम स्टॉक में परिवर्तन ऐड नहीं करेंगे, और अचल या स्थायी वर्ड दिया हुआ यानी कि सकल घरेलू अचल या स्थायी पूंजी निर्माण है तो स्टॉक में परिवर्तन होगा। इन सब घरेलू पूंजी निर्माण दिया होगा तो सिर्फ आप डायरेक्ट फिर शुद्ध निर्यात लोगे, चाहे क्वेश्चन में आपको स्टॉक में परिवर्तन गिवन है तो भी आप उसको ऐड नहीं करोगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो है वो इक्वल टू होता है सकल घरेलू अचल या स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो अगर ये भी लर्न करना चाहो ये भी सही है, नहीं तो आप एक सिंपल वर्ड लर्न कर सकते हो कि अचल या स्थायी वर्ड गिवन है तो उस पर परिवर्तन ऐड करेंगे, अचल या स्थायी वर्ड नॉट गिवन, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। तो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण 90 कंजप्ट कैपिटल डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में यानी स्थायी पूंजी का उपभोग, मूल्यह्रास 20 गिवन है, एक्सपोर्ट -20, इंटरेस्ट 60 यानी ब्याज 60 दिया हुआ है, रेंट किराया या लगान 70 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय -50, और लास्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 60, ठीक है। तो एक बार स्टूडेंट ये हमारे हैं प्रॉफिट 200, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम भोग हुए 40, गवर्नमेंट से सरकारी अंतिम भोग हुए 250, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारियों का पारिश्रमिक 350, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 90, सकल घरेलू पूंजी निर्माण 90, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन स्थायी पूंजी का उपभोग, मूल्यह्रास 20, नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात -20, इंटरेस्ट यानी ब्याज 60, रेंट लगान किराया 70,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय -50 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स इनकम मेथड से। तो देखो इनकम मेथड में सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कर्मचारियों का पारिश्रमिक 50, कहीं डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो हमें यहाँ अंशदान यानी कि वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उनको ऐड करके तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट गिवन है 350, ऑपरेटिंग सरप्लस इसको कहते हैं परिचालन अधिशेष। तो इसमें हमारा देखो रॉयल्टी नहीं दी हुई तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट आएगा। कई बार रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ, रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ दिया हुआ है। तो प्रॉफिट 200, इंटरेस्ट 60, रेंट यानी लगान या किराया 70। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड नॉट यानी कि मिश्रित आय हमें नहीं दी हुई। स्वयंसेवी की मिश्रित आय की मृत आय या स्वयंसेवी की मिश्रित आय ये नहीं गिवन। इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाता है डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट 680। तो इनको ऐड किया तो ये कितना आ गया हमारा 680। ठीक है, नेशनल इनकम है एनएनपी एट एफसी। तो नेट सेम है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। तो 680 प्लस -50, तो 680 -50 630 आंसर आ गया। तो ये हमारा राष्ट्रीय या नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया इनकम मेथड से। अब इसके बाद नाउ स्टूडेंट वी विल डू एक्सपेंडिचर मेथड। एक सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें देखो फर्स्ट आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 440 यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय 440। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 250 और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमें फिक्स वर्ड इज नॉट गिवन। तो हियर वी वुड नॉट टेक चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में भी नहीं गिवन है, दैट इज अ डिफरेंट वे। इन सम टाइम इन द क्वेश्चन आल्सो गिवन एंड गेटिंग कंफ्यूज। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, फिक्स वर्ड इज नॉट गिवन, चेंज इन स्टॉक वुड नॉट बी ऐड हियर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 90, नेट एक्सपोर्ट्स -20। तो इनको ऐड किया वी गेट 760 जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। अब नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट ये गया हमारा देखो 760 था, डेप्रीसिएशन गिवन है -20 तो यहाँ पे 20 रख दिया। तो ये माइनस का है तो -20 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 गिवन है क्वेश्चन में। तो -50 ब्रैकेट में देंगे माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60। तो ये हमने ऐड किया तो -130 हो जाएगा। तो 630 आ गया। देखो एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर इज 630 and income method also 630. So we take any method for calculating national income will be same. Clear students? So our income and expenditure method students can note down very easily, or you can do practice also for this. ठीक है, और
हमारा थर्ड मेथड जो है हमारा वो है वैल्यू एडेड मेथड। दिस इज प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड वन इज प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। तो इसमें देखो वी हैव थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली एग्रीकल्चर या जो डिपेंड होता है मेनली ऑन नेचर, बाय गेटिंग एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इंडस्ट्री वगैरह। टर्शियरी सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और अपना कम्युनिकेशन, तो ये सारा हमारा कौन सा सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर। बीपीओ आजकल जैसे बीपीओ कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो बीपीओ सेक्टर इज आल्सो सर्विस सेक्टर। एंड नाउअडेज द सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द वर्ल्ड आल्सो, नॉट ओवर द वर्ल्ड आल्सो। तो इसमें देखो हमारे थ्री सेक्टर्स हैं, तो इसमें हम जीवीएमपी निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और जीवीएमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज सेम थिंग एज जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट वी फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर, जीवीएमपी एट प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस। तो ये कह सकते हैं जीएमपी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इन प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द टर्शियरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस, यानी जीवीएमपी एट प्राइमरी सेक्टर, जीवीएमपी एट सेकेंडरी सेक्टर, जीवीएमपी एट टर्शियरी सेक्टर। तो इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है, इकोनॉमी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। अब इसमें हम देखो क्या करेंगे, वही नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएफसी। तो क्या करेंगे सेम, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, सॉरी प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो हमारे पास तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो तीनों सेक्टर की जीवी एट एमपी, ये जीवीएम फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। यू कैन राइट इट हियर, नॉट गिवन, तो यू कैन राइट जीवीएमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउट माइनस इंटरमीडिएट। तीनों सेक्टर की जीवीएमपी निकालेंगे, वी गेट जीडीपी एट एमपी, तो माइनस करेंगे प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, तो वी गेट नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी इन द हिंदी दैट मूल्य वृद्धि विधि, उत्पादन विधि, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, या इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बाजार कीमत क्षेत्र में सकल मूल्य, ठीक है, यानी कि जीवीए एमपी एट प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र पर जीवीएमपी या बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि। ऐसे इसमें लिखेंगे बाजार कीमत पर द्वितीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, और बाजार की तृतीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, जीवीए एमपी एट प्राइमरी सेक्टर, जीवीएमपी एट सेकेंडरी सेक्टर, जीवीएमपी एट टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर की जीवीएमपी अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है। ठीक है, उसमें वही है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय होता है एनएनपीएफसी, तो राष्ट्रीय नेट इज इक्वल टू ग्रॉस यानी शुद्ध बराबर सकल माइनस मूल्यह्रास या गिरावट या स्थायी पूंजी का भोग, और नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और प्लस करेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आए, तो इनको ऐड कर दे तो राष्ट्रीय आय निकल जाती है। स्टूडेंट यू कैन नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स सो दैट यू हैव नो प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। अब ये न्यूमेरिकल है हमारा, फिर लास्ट में एक बार सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड। पेपर में क्योंकि ज्यादातर देखो थ्योरी ज्यादा आती है, इसमें
बट न्यूमेरिकल का ये है कि स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस आएंगे, तो यू कैन शो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल। आप एक न्यूमेरिकल करके भी दिखा सकते हैं, तो सो दैट जो एग्जामिनर है उस पे आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कि यू नो अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो जैसे ये गिवन है हमारा, कैलकुलेट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए वैल्यू एडेड मेथड से, यानी और प्रोडक्ट मेथड से, मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि। तो जैसे ये देखो ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, ए प्राइमरी सेक्टर में 1800 है, सेकेंडरी सेक्टर में 1200 है, टर्शियरी सेक्टर में 1300 है, यानी उत्पाद का मूल्य। देखो जीवीएमपी मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि का उत्पादन का मूल्य या उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती भोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पादन का मूल्य या उत्पाद का मूल्य, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र 1800, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र 1200, 1200 और टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र, या इसको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी उसका है 1300। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। फिर ऐसे ही वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्राइमरी सेक्टर 800, सेकेंडरी सेक्टर 400, टर्शियरी सेक्टर 350। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, या मध्यवर्ती उपभोग भी कह सकते हैं। मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य प्राथमिक क्षेत्र में 800, द्वितीय क्षेत्र में 400, टर्शियरी यानी तृतीय क्षेत्र में 350। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर 150, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास 180 और सब्सिडीज 80 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय -30, सब्सिडीज 80 यानी इसको अनुदान कहते हैं या आर्थिक सहायता हिंदी में 80 है, और डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास 180, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर 150। तो अब देखो स्टूडेंट्स, वी फाइंड द जीवीएमपी ऑल 3 सेक्टर्स। तो जीवीएमपी एट प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो कितना है, 1800 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800, 1800 माइनस 800 तो 1000 आ जाएगा। फिर जीवीएमपी एट सेकेंडरी सेक्टर, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पाद का मूल्य 1200 है, देखें हम 1200 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400, ये आ जाएगा 1200 माइनस 400 800, और जीवीएमपी एट टर्शियरी सेक्टर 1300 माइनस 350। तो जीवीएमपी बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि 1800 माइनस 800 1000, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि द्वितीय क्षेत्र में 1200 माइनस 400 800, और जीवीएमपी एट टर्शियरी सेक्टर 1300 माइनस 350, तो ये आ गया हमारा 950। तो तीनों को ऐड करेंगे, जीडीपी एट एमपी आ गया 2750। ठीक है, तो लास्ट आया है एनएनपी एट एफसी, तो और हमारे पास जीडीपी एमपी है, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, शुद्ध बराबर सकल माइनस मूल्यह्रास, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल और डोमेस्टिक रिलेटेड एनएफआईए, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक है, अब तो ये 2750 है, डेप्रिसिएशन -1 और एनएफआईए -30, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स 150 गिवन है, उसमें से ब्रैकेट बना के माइनस सब्सिडीज 80 लेस कर देंगे, तो 2750 -30 -70, तो 2470 जो है हमारा आंसर आ गया। दिस इज द मेथड of calculating national income by value added method। ठीक है, ये जो हमारा मेथड है ये वैल्यू एडेड मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द मेथड ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरी। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड
कह रहे हैं किसी स्टूडेंट नहीं कर यस स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज तो आती नहीं ना आती है तो कहते कि अनम्यूट कर दो अपने आप को हम कर सकते किसी का यस स्टूडेंट्स ठीक है तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड और आउटपुट So this is the method of calculating national income by income method. ठीक है इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड ये हमारे मेथड्स हैं और ये इनमें स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस भी आते हैं नेक्स्ट क्लास वी विल डू स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस और सम आइटम्स आर मोस्टली इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम भी है इसमें देखने जो आज किया है थोड़ा सो दैट स्टूडेंट है देखो इनकम मेथड में सबसे पहले आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जिसमें ए सैलरी बी वेजेस सी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ए सैलरी बी वेजेस सी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो ए है हमारा रेंट बी इंटरेस्ट सी प्रॉफिट और इसको कॉर्पोरेट और प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या इसको हम ये भी कहते हैं सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर प्लस डिविडेंड तो इन सबको ऐड करके वी गेट प्रॉफिट एंड डी रॉयल्टी है तो ये हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट्स हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 पार्ट्स हैं सैलरी वेजेस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट टू एसएस स्कीम्स मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं सीए है डॉक्टर है जो अपना पर्सनल जैसे सीए अपना पर्सनल ऑफिस है उसका वहां पे वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं तो देयर इनकम इज मिक्स्ड ठीक है और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो इफ वी ऐड ऑल दीज 3 मेन तो वी गेट डोमेस्टिक इनकम एंड डीपीएफसी नेशनल इनकम फाइंड करना है तो एनएनपीएफसी तो नेट सेम है नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई तो ये हमारा इनकम मेथड है इसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे आपको मैंने एक पॉइंट बताया था स्टूडेंट you must keep in your mind while calculating the national income here gross domestic fixed if fixed word is given we add change in stock fixed word is not given so change in stock will not come here so we have only then 4 items private final consumption expenditure government final consumption expenditure gross domestic capital formation export minus GDP at MP. Gross domestic product at market price, national income NNP at FC, net is equal to gross minus depreciation, national is equal to domestic plus FIA, factor cost is equal to market price minus NIP. ठीक है तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है फिर उसके बाद नेक्स्ट किया था हमने वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड देखो स्टूडेंट देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र टर्शियरी और सेकेंडरी तो प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं जो एग्रीकल्चर है जैसे इसमें जो नेचर पे डिपेंड होती है मोस्टली
एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फार्मिंग है, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा। तो इसमें फर्स्ट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द प्राइमरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस, जीवीए एमपी एट सेकेंडरी सेक्टर, जीवीए एमपी एट टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर की जीवीए एमपी ऐड कर देंगे, वी गेट जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम इज एनएनपी, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो ये हमारा तीनों मेथड्स हैं। ऐसे ही हिंदी में है, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ए मजदूरी, बी वेतन, सी सामाजिक सुरक्षा अंशदान नियोजकों या मालिकों द्वारा, प्रचालन अधिशेष इसे संपत्ति से आय भी कहते हैं, ठीक है, प्रचालन अधिशेष संपत्ति से आय, जिसमें हमारा लगान प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। जो फर्स्ट वाली है वो हम जॉब करते हैं कहीं किसी दूसरे के यहाँ और उससे हमें सैलरी मिलेगी। अगर देखो परमानेंट है तो सैलरी मिलेगी वेतन, और अगर टेम्परेरी है तो वेजेस, जैसे आपने सुना भी होगा डेली वेजेस पे लोग वर्क करते हैं, गवर्नमेंट में भी होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली वेजेस पे। तो उनका जिस दिन उनका काम करेंगे, यानी दैट मीन दे आर डूइंग द वर्क, दे विल गेट अ सैलरी। अगर नहीं कर रहे, जैसे जो डेली वेजेस पे होता है, अगर संडे छुट्टी है तो उनको उस दिन का कोई पेमेंट नहीं होती, उनको जितने दिन उन्होंने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होती है, वेजेस। समाज मतलब जो जो वेजेस वगैरह में होता है उसके अंदर जो उनको एम्प्लॉयज को कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी जो ये वाली है, सामाजिक सुरक्षा अंशदान मालिकों या नियोजकों द्वारा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो ज्यादातर परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिनको सैलरी मिलती है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान मालिकों या नियोजकों द्वारा, प्रचालन अधिशेष, ठीक है, संपत्ति से आए, इसमें लगान या किराया, लगान रेंटल इनकम, ब्याज, लाभ, लाभ कर, निगम कर, अवितरित लाभ, लाभांश, इनको जोड़ के लाभ कर या निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं इसे। ये वो टैक्स होता है जो लोगों की, जो कंपनी के प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है। रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी कॉपीराइट पे होता है, जो जैसे कॉपीराइट्स वगैरह सर आपकी आवाज नहीं आ रही। की होती है, म्यूजिक है या जैसे कोई डिजाइन है, कल लोग तो कॉल कर रहा है। एक सेकंड, अब आ रही है बेटा? हेलो सर हाँ आ रही है। थैंक यू सर। तो और स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी। इसमें है कुछ, ठीक है। तो ये हमारे मेथड्स हैं। तो कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो प्रचालन अधिशेष, लगान, ब्याज, लाभ, लाभ कर, निगम कर, रॉयल्टी, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, इसमें इनकम मिक्स होती है। इसमें जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जैसे सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो अपना ऑफिस सेटअप करते हैं और कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी इनकम मिक्स होती है, डायरेक्ट ऐसे ही गिवन होता है। तो और इन सबको ऐड कर दे तो वी गेट एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम करना है तो इसमें एनएफआईए, विदेशों से प्राप्त संसाधनाएं जोड़ देंगे, क्योंकि देखो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। और नेक्स्ट हमारा है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें पहला आता है निजी अंतिम भोग व्यय, दूसरा सरकारी अंतिम भोग व्यय, थर्ड है सकल घरेलू अचल या स्थायी पूंजी निर्माण, फोर्थ है स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, और शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात। इसमें स्टूडेंट आपको वन पॉइंट आपको यू मस्ट कीप योर माइंड दैट कि ये जो अचल या स्थायी वर्ड है, अगर ये गिवन है तो स्टॉक में परिवर्तन ऐड करेंगे। अचल या स्थायी वर्ड इज नॉट गिवन, तो वी वुड नॉट ऐड स्टॉक चेंज इन स्टॉक या स्टॉक में परिवर्तन। तो देखो हमारा तब कैसे जाएगा, एक बार बताता हूँ। निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और सीधा जाएगा फिर शुद्ध निर्यात। क्योंकि देखो सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो है वो सम होता है सकल घरेलू अचल या स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन।
तो इन सबको ऐड कर दें और तो हमारे पास घरेलू आय जीडीपी एट एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो वैसे ही कंपेयर है, नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। और नेक्स्ट हमारा है मूल्यवर्धी विधि या उत्पादन विधि, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड। तो इसमें देखो तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्र में बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, तृतीयक क्षेत्र में बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। और बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीएमपी एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है सॉरी उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, इंग्लिश में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो तीनों क्षेत्र की जीवीएमपी जोड़ देंगे तो हमारे पास जीडीपीएमपी आ जाएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें को राशि निकालना है तो सेम वही है, सकल शुद्ध बराबर सकल माइनस मूल्य, राशि इज इक्वल टू डोमेस्टिक घरेलू, तो राष्ट्रीय बराबर घरेलू प्लस एनएफआईए, साधन लागत बराबर बाजार कीमत माइनस एनआईटी शुद्ध। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ये मेथड है तीनों, इनकम मेथड, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर बाय दीज फॉर्मूलाज एंड मोस्टली इन द एग्जाम जो अब हमारे जैसे 12th में तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कम चांस होता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल का, बहुत कम। वी कैन से अगर हम देखें 10 पेपर्स तो 1 और 2 टाइम, 1 टाइम वेरी रेयरली आए हुए न्यूमेरिकल। तो थ्योरेटिकल ज्यादा आता है वैसे, लेकिन आपको ये है कि जो उसमें स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस आएंगे पेपर में, तो जैसे आता है एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड प्रिकॉशन व्हाट शुड बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय सपोज इनकम मेथड। तो आपने स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, स्टेप्स, प्रिकॉशंस और आइटम टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो उसमें जो है आपने स्टेप लिखा सपोज इनकम मेथड का, तो यू कैन शो a numerical example so that your explanation is very good, become very good and you will get a very good marks, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सारे, और थ्योरी नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस और आइटम टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉट इंक्लूडेड। तो फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम का टॉपिक कंप्लीट होगा, और इससे एक क्वेश्चन जो है पेपर में 100% आएगा इस टॉपिक से। जितने भी टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल स्टडी ऑल दिस टॉपिक प्रॉपरली। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव द क्वेरीज अबाउट दे हैव लेफ्ट सम क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस जो स्टार्टिंग में थी, तो वी विल रिवाइज आवर सिलेबस इन the last classes। जैसे हमारे कुछ टॉपिक इतने लेंथी नहीं होंगे, तो we have the time in these, तो we will discuss previous topics also, basic topics जो थे, जो कई स्टूडेंट स्टार्टिंग के कह रहे हैं कि उनके they did not take the classes due to some reason, so that we can revise all these topics in our coming classes also. And the national income is very important topic for your examination point of view and for your knowledge also, because while you are giving the entrance exam for your job या further your education like post graduation and your job also, so economics is very important topic, and here about 5 question minimum, 5-10 question minimum from the economic aspects also. So you are the students of economics, so you will get the benefit. You have the idea what is GDP, what is national income, so that will be very benefit for you, okay students। so you will do study properly and do practice for numerical and study properly and make your own, and so that you have the practice for writing also, because most of the student not having the writing practice, उनको यही नहीं होता कि लिखना क्या है, वो लिख ही नहीं पाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस लेफ्ट
from the students. तो इसीलिए you make your own notes so that you have the good writing practices. And in the next class we will start our next topic, steps and precautions of calculating national income. Okay students. उसमें डालना. हेलो मैम. जी सर. हाँ जी सर. अब मैम एंड कर दीजिए सेशन. ओके सर. ओके, थैंक यू मैम.